Welcome to the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So yes children, this is again the second part of class 9th first lesson, that was Dharam Juddha. I hope you can see the board and you can easily recognize, पहचान सकते हैं कि ये वही lesson है, दूसरा हिस्सा. In the first part हमने पढ़ा, वी स्टडीड द बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, कि आखिर ये प्ले किस लेखक ने कहाँ और किन बातों पर लिखा है. What is the topic? What are the problems? So I hope you remember, in the first part we have already said it is a Rajasthani play written by Arjun Dev Charan, and there is a girl Padma who is asking her mother and father about the questions which comes to her mind. जो उसके दिमाग में आते हैं, questions which come to her mind, those are the questions that Padma is asking. So let's read the play and find out what Padma is exactly asking. So now let's come to the part of the play which is there in your book. So just read it, let me read it out. Okay. Padma, mother, what is the identity of a woman? Same question, Padma पूछती है, mother, what is the identity of a woman? एक woman की पहचान क्या है? माँ, why do you ask that? तुम क्यों पूछ रही हो? Why do you ask that? ये क्यों पूछ रही हो? Because we do not think of these questions. हम ऐसे questions नहीं सोचते हैं. That's why देखो small group में discuss करने के लिए there is a box and you have to discuss, और क्लास में discuss करो अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से. What forms the identity of a woman in the society? This is the first question. एक women की पहचान एक समाज में क्या है? Okay. Is her identity about how she wears, how she dresses up? क्या हमारी पहचान हमारा ड्रेस है? क्या हमारी पहचान हमारी सुंदरता है? क्या हमारी पहचान is our identity is our beauty? Is our identity our dress? Is our identity our food? और is our identity our family? क्या हमारा परिवार ही हमारी पहचान है? क्या हमारे फादर ही हमारी पहचान है? या शादी के बाद मेरा हस्बैंड ही मेरी पहचान है? क्या मेरा ड्रेस मेरी पहचान है? द वे आई लुक, इज दैट माई आइडेंटिटी? क्या ये मेरी पहचान है? सो रिमेंबर चिल्ड्रेन, द ट्रू आइडेंटिटी लाइज इन योर वर्क. हमारी असली पहचान हमारे काम में छिपी है, नॉट इन एनीथिंग एल्स, और बाकी चीज़ों में नहीं. हमारी असली पहचान हमारा काम है, एंड इट लाइज इन द वैल्यूज़ विच वी हैव इन आवर सेल्फ. जो वैल्यूज़ हमारे अंदर हैं उसमें हमारी असली पहचान है. सो वी शुड बी माइंडफुल ऑफ दैट. सो पद्मा आस्क्स हर मदर, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन? एंड हर मदर सिंपली टेल्स हर, व्हाई डू यू आस्क दिस क्वेश्चन? ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो? वी डू नॉट थिंक लाइक दैट. हम ऐसा नहीं सोचते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस अगेन. हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? मैं दूसरों से अलग कैसे हूँ? वी ऑल वॉन्ट आवर इंडिविजुअल आइडेंटिटी. हम सब इंडिविजुअल मतलब अकेला. हम अकेले की अपनी पहचान चाहते हैं. हम नहीं चाहते हैं कि हर कोई हमें एक नज़र से देखे. जो हमारी अलग से खासियत है वो खासियत लोगों को नज़र आए. वी ऑल वॉन्ट दैट. सो पद्मा ऑल्सो आस्क, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? Now, before I answer and before you read what her mother answered, just look at this picture and observe what is happening. You can see the setup of Padma and her mother. Okay, this is a complete, very traditional family. Traditional मतलब पारंपरिक. Tradition means parampara. Traditional means पारंपरिक. This becomes an adjective. Traditional. This is a traditional house. Mother is cooking, Padma is sitting beside her, and mother and daughter are talking. वो दोनों बात कर रहे हैं, and Padma is asking, how am I different from others? Okay, and what is mother replying? Mother क्या आंसर कर रही है? I am no different from your father. We will get this response later on, but इस picture को observe करो और बहुत ध्यान से देखो. What is the answer of her mother? I am no different from your father. That means my identity is nothing. Whatever your father feels, whatever your father thinks, his identity, his views, उनकी पहचान, उनके विचार is all my पहचान,
my identity and my views. I am no different from your father. तुमको अलग होने की ज़रूरत नहीं है. Just like me that I am no different from your father. So, लेकिन उस response तक बाद में आते हैं. This picture के observation से, with the observation of this picture, you can understand that yes, this is a conventional setup. Conventional, मैंने दो words use किए हैं. One is traditional and the other is conventional. दोनों का मतलब क्या है? Same. These are synonyms. Same word. Traditional मतलब पारंपरिक और conventional मतलब भी पारंपरिक ही होता है. So this is a traditional setup. पारंपरिक setup है, पारंपरिक घर है, in which mother is cooking, Padma is sitting beside her and she is asking questions from her mother. Now let's come back to the book. Padma is asking, how am I different from others? माँ बोलती हैं, you are my daughter, our only child and your father's darling. Darling मतलब बहुत प्यारा, ठीक है. You are my daughter, तुम मेरी बेटी हो, and our only child, और मेरी एकमात्र बेटी हो. Only child means अकेला बच्चा, और मेरा अकेला बच्चा हो. And your father's darling, और अपने पापा की भी बहुत प्यारी बच्ची हो. Padma, father cares more for money, but Padma does not agree with it. पद्मा को बिल्कुल नहीं लगता है she is father's darling. Why? क्यों नहीं लगता है? Because what she feels, उसको क्या महसूस होता है? Father cares more for money than for me. Father cares, father चिंता करते हैं, more for money, पैसे के लिए, than for me, मुझसे ज़्यादा. It takes a heart to bestow love. Bestow is a word. I am writing the meaning here. I hope you can look at it. Bestow, B-E-S-T-O-W. Bestow means ऊपर से डालना कह सकते हो, बहुत ज़्यादा प्यार, उड़ेलना जिसको कहा जाता है, ठीक है. Bestow, उड़ेलना, ठीक है, ऊपर से डालना. That means it takes a heart. दिल होना चाहिए प्यार करने के लिए, प्यार देने के लिए. But what Padma feels that no, my father does not have a heart. He only cares for money. माँ, how her mother replies. माँ क्या जवाब देती है इस बात का? For whom does he save? Save मतलब बचत. For whom does he save? वो किसके लिए बचाते हैं? He does all this only for your sake. He does all this. He does, वो करते हैं, all this, ये सब कुछ, for your sake, S-A-K-E, sake. Underline this word and write the meaning के लिए. God's sake, कहते हैं ना, for God's sake, भगवान के लिए. For goodness sake, अच्छाई के लिए. For humanity's sake, इंसानियत के लिए, ठीक है. For your sake, तुम्हारे लिए. For my sake, मेरे लिए. S-A-K-E, sake. Sake means के लिए. So he does all this for your sake. वो सब कुछ तुम्हारे लिए करते हैं. You should not think that I have no heart. तुमको नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास कोई दिल नहीं है. पद्मा कहती है, but I didn't say it of you. मैंने आपके बारे में कहा. I said all this about father. मैंने तो पापा के लिए कहा कि पापा के पास दिल नहीं है, उनको दिन रात पैसे की चिंता होती है. He all the time he cares for money. He does not love me. Then mother says, I am not in any way different from him. That means my identity, मेरी पहचान अपने आप में कुछ नहीं है. I am just the same as your father. मेरी पहचान उनसे अलग नहीं है, मैं उनसे अलग नहीं हूँ. I am not in any way different from him. My identity, मेरी पहचान is linked with his, and I cherish the bond. And I cherish means बहुत खुश होना, बहुत किसी बात के लिए संतुष्ट होना, खुश होना. और मुझे बहुत खुशी है किस बात की? इस बॉन्ड की. बॉन्ड मीन्स बंधन. केमिस्ट्री में पढ़ा है ना,
बॉन्ड, दो एलिमेंट्स जब एक साथ आते हैं तो हम इनको बॉन्ड कहते हैं। बिल्कुल, जब फादर और मदर एक साथ आते हैं, भाई बहन के बीच में संबंध होता है, ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इमोशनल रिलेशन को भी हम बॉन्ड कहते हैं, बंधन। एंड आई चेरिश दिस बॉन्ड, और मैं इस बंधन में बहुत खुश हूँ। एंड आई एम नो डिफरेंट फ्रॉम योर फादर, मैं तुम्हारे फादर से अलग नहीं हूँ, इसलिए तुमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नाउ जस्ट वेट चिल्ड्रन एंड लुक एट दिस वर्ड विच आई हैव गिवन यू, डाउरी। ओके, दिस इज द वर्ड डाउरी हियर। डाउरी मीन्स दहेज। एंड माँ क्या रिप्लाई करती हैं कि योर फादर केयर्स फॉर मनी बिकॉज ही वॉन्ट्स टू सेव इट फॉर यू, वो तुम्हारे लिए बचाना चाहते हैं। किस लिए? शी इज अ गर्ल चाइल्ड, और जब उसकी शादी होगी, when she will get married, he will have to give her handsome dowry, तब उसे उन्हें बहुत अच्छे से डाउरी देनी होगी, because that dowry will earn, उस डाउरी से उसको रिस्पेक्ट मिलेगी। The dowry will earn respect for her in her family with her husband, अपने husband और अपने ससुराल में she will get respect with the help of this dowry. And this dowry is all about the gifts. So gifts are expensive. Expensive means बहुत महंगे, cheap means सस्ता, expensive means महंगे. So expensive dowry means more respect. जब महंगी डाउरी होगी तो more respect. Expensive, बिल्कुल जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे इस वर्ड की स्पेलिंग है। If you want, I can write it here. X-P-E-N, pen. Sieve, S-I-V-E, expensive. X-E-X-X-P-E-N, pen. S-I-V-E, sieve, expensive. Expensive dowry, more respect. और expensive dowry के लिए क्या चाहिए? Fathers need to have more and more money. Fathers के पास पैसा होना चाहिए. So because he loves Padma so much, that's why he is busy making money for his daughter. अपनी बेटी के लिए वो डाउरी के लिए पैसे कमाने के लिए बिजी हैं, बट एट द टाइम द डॉटर कुड नॉट रियलाइज इट, पद्मा ये महसूस नहीं कर पाती है। देन व्हाट कम्स नेक्स्ट? फादर एंटर्स पद्मास फादर। एज द मदर एंड डॉटर्स वर टॉकिंग, मदर एंड डॉटर वर टॉकिंग, पद्मास फादर एंटर, पद्मा के फादर आते हैं। व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड पद्मास मदर? पद्मा की माँ, पद्माज मदर, एपोस्ट्रॉफी एस है वहां, तो की, पद्माज मदर, पद्मा की माँ। व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड? बॉन्ड के बारे में, बंधन के बारे में ये क्या बात है? माँ, हियर इज योर फादर, हियर इज योर फादर, लो तुम्हारे पापा आ गए। आस्क हिम वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो, आस्क हिम, पूछो उन्हीं से, वॉट एवर, जो कुछ भी, वॉट एवर, विच एवर, वेयर एवर, जहां भी, ठीक है। सो वॉट एवर, जो कुछ भी, यू वॉन्ट टू नो। वॉट इज इट माई चाइल्ड, क्या बात है? शी वॉन्ट्स टू नो वॉट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन। तब उसकी माँ क्या बोलती है? शी वॉन्ट्स टू नो। अब सुनो इस लड़की की, ये क्या पूछना चाहती है कि एक औरत की पहचान क्या है। यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड। फादर ने बड़े प्यार से समझाया, तुम्हें सब कुछ पता चलेगा बेटा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। दैट मीन्स बिफोर मैरिज पद्मा डज नॉट हैव एनी आइडेंटिटी। और इसी क्वेश्चन में ये जवाब भी छुपा है कि इफ यू आर नॉट मैरिड एज अ गर्ल और एज अ वुमन, देन यू विल नॉट हैव एनी आइडेंटिटी, तब तुम्हारी कोई भी पहचान नहीं होगी। डज मैरिज लेंड आइडेंटिटी टू अ वुमन? क्या मैरिज लेंड, लेंड मीन्स देना, जैसे गिव कहते हैं, सो गिव का सिनोनिम, गिव का ही दूसरा वर्ड है LEND, लेंड। यू कैन अंडरलाइन इट इन योर बुक एंड यू कैन राइट द मीनिंग देना। डज मैरिज लेंड, डज मैरिज गिव, बिल्कुल, डज मैरिज गिव, क्या शादी देती है आइडेंटिटी टू अ वुमन, एक औरत को उसकी पहचान? डज मैरिज लेंड आइडेंटिटी टू अ वुमन? What is a woman without a husband? तो माँ बोलती है What is a woman without a husband? बिना हस्बैंड के कोई औरत क्या है? What if one does not get married? फिर पद्मा बोलती है What if one does not get married? अगर मैं शादी ना करूं तो क्या होता है?
वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चंस? तब माँ उसको झिड़की देती है. शी सिंपली स्कोल्ड्स हर. स्कोल्ड, SCOLD, स्कोल्ड. स्कोल्ड मीन्स डांटना. इसका दूसरा वर्ड क्या होता है? रीब्यूक, REBUKE, रीब्यूक, BUKE, ब्यूक, रीब्यूक. सो मदर सिंपली गेट्स इरिटेटेड. अब वो इरिटेट हो जाती है पद्मा के क्वेश्चन से. एंड व्हाट डिड शी से? शी रिब्यूक्ड. सो व्हाट अबाउट अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड? तब फिर पद्मा पूछती है, व्हाट अबाउट अ वुमन? अगर हस्बैंड से ही पहचान है, इफ हस्बैंड इज द ओनली सोर्स फॉर द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, देन व्हाट अबाउट अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड? जिसके हस्बैंड ना हो. नाउ बिफोर आई मूव अहेड, जस्ट हैव अ लुक एट द पिक्चर. सामने देखो, व्हाट हैपन्स हुज हस्बैंड इज डेड? जिसके हस्बैंड नहीं रहते हैं, यू कैन सी 3 women are gossiping about, thinking in their own way about a girl whose husband is dead. One woman shouts it out, see, her husband has died, still she is happy, what is a shame? हस्बैंड की डेथ के बाद या किसी की भी डेथ के बाद वी कैनॉट ऑलवेज रिमेन सैड. हम हमेशा दुखी नहीं रह सकते. वी हैव टू मैनेज टू कोप अप विद आवर लाइफ. अपनी लाइफ के साथ हम कोप अप करते हैं. बट इफ द हस्बैंड ऑफ अ वुमन डाइज, तो समाज, सोसाइटी क्या कहता है? व्हाट अ शेम, हाउ कुड शी बी हैप्पी? वो हंस कैसे सकती है, वो मुस्कुरा कैसे सकती है? व्हाट अ शेम. Because society does not accept that she is still a woman and still a living being. वो अभी भी लिविंग बीइंग है, एक इंसान है जिसे भी हंसने मुस्कुराने का हक है. Just because her husband has died, it should not be taken like she does not have the right to smile or to be happy again. वो खुश होने का हक उसने खो दिया है. एंड जो बगल में जो लड़कियां खड़ी हैं वो क्या सोच रही हैं? सपोज वन डे द सेम थिंग हैपन्स विद मी, कहीं मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा तो लोग मेरे बारे में भी ऐसा ही कहेंगे. अनदर पर्सन, जो अदर लेडी है, वो क्या सोच रही है? लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली एंड शी इज़ थिंकिंग, आई नो शी इज़ अ गुड गर्ल. मुझे पता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है, बट नो बडी विल बिलीव मी. पर कोई विश्वास नहीं करेगा, बिकॉज हर हस्बैंड इज नो मोर. अब उसके हस्बैंड उसके साथ नहीं है. सो दिस इज द रियल प्रॉब्लम, दिस इज द रियल वैल्यू, दिस इज द युद्ध, दिस इज द युद्ध ओवर विच वी आर क्वेश्चनिंग द धर्म. धर्म मीन्स वैल्यू. उस वैल्यू को हम यहाँ लड़ाई के रूप में ले रहे हैं. वी आर क्वेश्चनिंग द वैल्यूज विच मेक्स अ वुमन completely dependent for her happiness and identity on her husband. कंप्लीटली, बिल्कुल निर्भर कर देता है कि हस्बैंड है तो हर खुशी है. किसी कारण से, फॉर एनी रीजन, इफ हस्बैंड इज नॉट देयर, देन यू डू नॉट हैव द राइट टू बी हैप्पी अगेन. सो लाइफ इज हेल फॉर हर, सिंपली हर मदर सेज. दैट्स वाई नाउ लेट अस कम बैक टू द बुक. व्हाट हर मदर सेज, लाइफ इज हेल फॉर हर. दैट्स इनजस्टिस, ये तो इनजस्टिस है. नाउ लुक एट द अदर पिक्चर. Look at the other picture. Father is sitting on a cot and mother and Padma both are sitting beside him. But they are not sitting on the cot because conventional family में husbands, father, ये लोग बहुत ऊंचे माने जाते हैं. They are considered as an authority. एक बहुत बड़ा powerful source माने जाते हैं. So they are sitting below next to him and Padma is telling that's injustice. ये तो बिल्कुल अन्याय है. And what is the response of a father? कि you should not think about like this. Rights are for equals. अधिकार उनके होते हैं जो बराबरी में होते हैं, जो बराबर में नहीं होते हैं उनके अधिकार नहीं होते हैं. So that's injustice. You needn't talk of justice and injustice here. तुम्हें न्याय अन्याय के बारे में यहाँ बात नहीं करनी चाहिए. Why? क्यों? Over here, look at your book now. Over here, women don't have the right to ask questions. Over here, यहाँ, women don't have the right to ask questions. औरतों को कोई अधिकार नहीं है. For what? To ask questions. सवाल पूछने का अधिकार नहीं है. Now this is the point. Why? क्यों? Are we not equal human beings? क्या हम इंसान नहीं हैं? If we are human beings,
and a man can ask question, so does a woman can also ask questions. एक औरत भी सवाल पूछ सकती है. But why? What right do they have then? तो उनके क्या अधिकार हैं? Rights are for equals dear. Rights जो हैं वो बराबर वालों के लिए होते हैं. So you are not equal. Do not ask questions. Do not ask for your rights. ना सवाल पूछो ना अधिकार पूछो. Why is a home considered a place for bargaining? क्यों घर को bargain means सौदा, कहते हैं ना 50 रुपए लेके जाओ 1 किलो सामान लेकर आओ, जिसको हम सौदा कहते हैं. दिस इज अ बार्गेन. और जब वेन वी से 50 नहीं देंगे 45 ही देंगे. वी विल नॉट गिव यू 50 रुपीज, आई विल गिव यू ओनली 45 एंड पैक 1 kg ऑफ लड्डूज, ओनली 45. एंड इफ द शॉपकीपर अग्रीज, अगर दुकानदार मान जाए, देन व्हाट इज दैट? दिस इज अ गुड बार्गेन, अच्छा सौदा मानते हैं. ओके, सो व्हाई इज होम कंसीडर्ड? घर में तो सौदेबाजी नहीं होती. आवर होम इज नॉट अ शॉप. वाई शुड इट बी द प्लेस ऑफ बार्गेन? यहाँ सौदेबाजी क्यों? इफ आई केयर फॉर यू, यू विल गिव मी रिस्पेक्ट. इफ आई डू नॉट वॉन्ट टू अग्री विद यू, यू विल नॉट गिव मी रिस्पेक्ट. मेरे पास कोई सवाल नहीं है, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है. वाई दिस शुड हैपन एट होम? ये घर पे क्यों होना चाहिए? एट होम वी आर ऑल इक्वल्स. घर पे तो सब बराबर हैं. हर कोई खुशी से बोल सकता है, हर कोई खुशी से सवाल पूछ सकता है. एवरीबडी कैन आस्क क्वेश्चंस. वी ऑल हैव इक्वल राइट्स. बट दिस इज व्हाट पद्मा फील्स, दैट इफ विमेन डू नॉट हैव द राइट, देन होम इज अ प्लेस ऑफ बार्गेनिंग. अगर औरतों के पास अधिकार नहीं है, इफ वुमेन डू नॉट हैव राइट, देन होम इज अ प्लेस फॉर बार्गेनिंग. तब घर जो है सिर्फ एक सौदेबाजी की दुकान है. वन शुडेंट लिव इन सच अ प्लेस. तब तो यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए. वन शुडेंट लिव इन सच अ प्लेस. किसी को ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए. यू विल गेट द सेम रिप्लाईज टू दीज क्वेश्चंस वेयर एवर यू गो. यू विल गेट द सेम रिप्लाईज. तुम्हें सेम यही जवाब मिलेगा वेयर एवर यू गो. हु टेल्स दिस? हु सेज इट? फादर टेल्स पद्मा कि तुम कहीं भी जाओगी, यू विल गेट द सेम रिप्लाई. दैट मीन्स नो प्लेस इन द वर्ल्ड इज रेडी टू गिव विमेन देयर क्रेडिट, विमेन देयर राइट्स. कहीं भी तुमको राइट्स नहीं मिलेंगे. यू विल नॉट बी ट्रीटेड एज इक्वल्स. तुम इक्वल्स बराबरी से ट्रीट नहीं की जाओगी. ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर विच आई हैव गिवन फॉर यू. व्हाट डू यू सी? अ ट्रक ड्राइवर. That too a lady truck driver in her lehenga choli. Okay, and she is also a truck mechanic. Okay, you can see a truck driver in her trousers also, and you can see a truck driver, the young girls coming in the field of mechanical engineering. They are ready to serve as mechanics, which involve lot of muscle strength, जिसमें muscle strength की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. Now think about it. If a man can be a truck driver, so a woman can also manage herself as a truck driver. वो भी ट्रक ड्राइवर का काम कर ले रही है. If a man can be a mechanic, a woman can also be a mechanic. No matter however she is considered as weak, जितना उसको कमज़ोर समझा जाता है, और whichever dress she is wearing, वो कुछ भी ड्रेस पहनी हो, she manages herself as a truck driver and she manages herself as a mechanic. The toughest job considered not suitable for women, जिसको वुमेन के लिए सूटेबल नहीं माना जाता है. बट एज एन इक्वल, इफ आई कैन डू दैट, इफ वुमेन कैन डू दैट, दे शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल्स. तो क्या इस बात का कोई मतलब है? नाउ लेट्स कम बैक टू द बुक. क्या इस बात का कोई मतलब है दैट वुमेन शुड नॉट हैव राइट्स, वुमेन शुड नॉट बी ट्रीटेड एज इक्वल्स? सिंपली नो. सो दिस इज द बैटल फॉर विच वुमेन हैव टू फाइट. जिसकी ये एक लड़ाई है जिसके लिए वुमेन हैव टू फाइट, एंड दिस इज द धर्म युद्ध. This is the fight for the values of dignity and respect. Okay, and every woman in every corner of the world, today, yesterday or tomorrow, has to face this battle. Sorry, not bottle but the battle. उनको ये लड़ाई फेस करनी पड़ती है. कुछ लोगों ने पहले की, कुछ लोग आज कर रहे हैं, और किसी किसी पॉइंट पर हो सकता है कुछ लोग कल भी करेंगे. ठीक है? That's why they say that marriage lends this identity.
Now what had Padma asked? Padma had asked, but the identity of a woman is the identity of the human race. A society sans women. Sans means without. A society without women. Sans, underline this word and write the meaning without. A society sans women, a society without women will not be considered a society itself. तो ये समाज रह ही नहीं जाएगा. That's why they say, इसीलिए तो कहते हैं that marriage lends this identity. Father फिर समझाते हैं उसको. That's why we are not talking about society without women. We are only talking about that marriage lends, marriage gives this identity. Lends, again the meaning is give. लेंड का मतलब देना. मैरिज ही, शादी ही वो औरत को पहचान देती है. बिकॉज विमेन, जब शादी होती है, बाल बच्चे होते हैं, परिवार आगे बढ़ता है, दिस इज़ द ओनली आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन. दिस इज़ द ओनली जॉब वेयर व्हाट दे कैन डू. घर परिवार संभालना, दिस इज़ द ओनली जॉब सूटेबल फॉर देम. और इसी से विमेन की पहचान बनती है. दैट्स व्हाट फादर टेल्स पद्मा. बट पद्मा फाइनली अगेन रिप्लाइज बैक. So if a girl does not get married, she has no identity. अगर शादी नहीं हुई, घर परिवार नहीं हुआ, if you have no family to call it, then you do not have any identity. So अगर शादी नहीं हुई तो आपकी कोई पहचान नहीं है. Why is that an unmarried man is venerated? Venerated means respected, exalted. Exalt मतलब बहुत ज़्यादा. Exalt. EXALTED, 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 respect. मतलब बहुत ज़्यादा सम्मान किसी को दिया जाता है. एंड कॉल्ड अ सेंट, और उसको संत माना जाता है. वाई अनमैरिड मैन इज अ सेंट एंड अनमैरिड वुमन इज कॉल्ड इमोरल और वॉन्टन. अनमैरिड वुमन को इमोरल, बिना वैल्यूज़ वाला माना जाता है. लगता है उसकी कोई पहचान नहीं है. शी डज़ नॉट हैव गुड क्वालिटीज़, शी डज़ नॉट हैव गुड वर्च्यूज़. वर्च्यूज़ एंड वाइसेस, दीज आर टू वर्ड्स विच यू शुड नो. क्वालिटी का दूसरा वर्ड क्या है? वर्च्यू. VIRTUE, VIRTUE, वर्च्यू. और इसका ऑपोजिट क्या होगा? वाइसेस. वर्च्यूज़ मीन्स सद्गुण और वाइसेस मीन्स दुर्गुण, गलत आदतें, गलत गुण. VICES, वाइसेस. सो द क्वेश्चन ऑफ पद्मा इज, if a woman is unmarried, if a woman is unmarried, does she have no identity? If she has no family, if she has no children, if she has no father, if she has no husband, what does it mean? तो इसका मतलब क्या है? The woman is not good enough. She cannot be treated as equal. क्या उसको बराबरी में नहीं ट्रीट किया जाएगा? Will she not be treated with respect? क्या उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए? How is that good? ये कैसे अच्छा है? How is that justified with the society? क्या ऐसा करना सही है? Is it correct or is it incorrect? This is the battle, this is the Juddha that Padma is fighting in her family, in her society. But the thing is, whatever a woman loves family, a woman loves children, a woman loves her husband, a woman loves her father, she loves everyone, she loves her brother. हर कुछ जो women चाहे, and if she loves it, then she should have it. किसी कारण से अगर उसके पास ना फैमिली है, शी डज़ नॉट हैव अ फैमिली, फादर, ब्रदर, हस्बैंड, चिल्ड्रेन, सो डज शी लूज ऑल हर रिस्पेक्ट ऑल्सो? क्या उसके सारे रिस्पेक्ट भी खत्म हो जाना चाहिए? शी शुड हैव नो राइट्स, क्या उसके अधिकार नहीं होने चाहिए? द क्वेश्चन इज दैट. सो women is also an individual, they should have respect no matter what. Okay, we may have family, we may not have family, we may dress like this, we may dress like that, we may eat something, we may not eat something, we may work in some places, we may not work in some places. Some of us are working outside, some of us working at home as a homemaker. So does that mean that we should not have respect? We are not equals? क्या घर में रहने वाले इक्वल नहीं हैं, बाहर जाने वाले इक्वल हैं? ऐसा कोई भी सवाल
जो इस वैल्यू को इस्टेब्लिश करता है दैट वी शुड बी अंडर एस्टिमेटेड, वी शुड नॉट बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, दैट इज़ द बैटल ऑफ द आवर। ये इस समय की लड़ाई है। We should treat, it is not just about women, it's about every person who is a human being, who is an animal, should be treated with kindness, respect, dignity, and that's all this Dharam Juddh is all about. So I hope you enjoyed this lesson. So thank you with this lesson.